Welcome back everyone and a very good morning to you. Today we are going to discuss about lesson number 1 in accountancy and the accounting done for the profit not for profit organizations means those organizations which are doing the public welfare. Then we are going to study about the books maintained by them. First of all, the books which is maintained by this type of organization is the cash book. Why they maintain the cash book? They maintain the cash book because the cash book records the receipts and payments which are done to the organization by the people or to the any outsider. Then the second thing is that they don't maintain capital account, they maintain the capital fund. The capital fund is that type of account in which all the donations, subscriptions, and the other received from the members they are deposited accordingly, and it is maintained by the firm such that it denotes how much capital fund is available at a particular year end. They can easily get the knowledge. Then the final account and the financial statements to be prepared. The first one is the receipt and payment account. Then what is receipt and payment account? It is an account which is real in nature. Real means what? In the debit side, the receipts are recorded, and the credit side, the payments are recorded. And only those receipts and payments are recorded which are done in the year or preceding year or coming year. Means it can have the records of the preceding year also, the current year also, and the coming year also. The next thing is that it is real account in nature. Means in the debit side the receipts and the credit side the payments are to be recorded. The next feature is that it record all type of transactions, whether capital nature or revenue nature. Both these type of transactions, which may be capital or revenue, which are being received or paid, they are all recorded in the books. Then in this book नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड. मतलब कहने का ये है कि इस बुक में केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो नगद हैं, नगद पेमेंट करने हैं या नगद प्राप्त करने हैं. जैसे एग्जांपल है डिप्रिसिएशन, इसको रिकॉर्ड इसमें किताब में नहीं किया जाता. इस बुक में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिप्रिसिएशन का रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि ये कैश नहीं है. एंड depreciation is a nominal account. I told you earlier that only real accounts are to be recorded here. और ये बुक की एक और खासियत है, इट इज मेंटेन्ड बाय इट इज मेंटेन्ड ओनली बाय नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो मतलब इस बुक को वही ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क ना करते हो, चाहे क्लब हो, जिम हो, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी संस्था हो जिसको प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं हो, वही ये बुक मेंटेन करता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय देम. देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसका नेचर क्या है? द फर्स्ट नेचर इज इट इज ए टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। इसमें डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये बनाया जब जाता है तो ये हूबहू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। इट रिसेंबल्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट आई अर्न, मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है या इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है उसको एसरटेन करने के लिए इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, यदि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारा सरप्लस है, और यदि हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो डेफिसिट में हम हैं। तो इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि वो स्थिति बताता है कि हम इस समय डेफिसिट में चल रहे हैं या सरप्लस में चल रहे हैं। इससे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्लियर हो जाता है। अच्छा, और इसका सरप्लस या डेफिसिट हम फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और खासियत है कि इसका अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस पे होता है, मतलब कि ये जिस साल से रिलेटेड है उसी वर्ष में इसमें एंट्रीज आती हैं, चाहे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड हो। ओके, आज हम लोगों ने जो सीखा उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग कैश बुक मेंटेन करती हैं। अच्छा, कैश बुक में जो भी रिसीव्ड पेमेंट है उसका एंट्रीज रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो लेजर अकाउंट से मेंटेन करती हैं, कैटल फंड अकाउंट मेंटेन करती हैं, मेंबर्स का जो फी है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है उसके लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये लोग मेंटेन करती हैं। तो ये जो बुक्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं बैलेंस शीट बनाने में और उनको मदद करते हैं। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।